Hey guys, this is Gurjap and today we'll be continuing our chapter of statistics, and in this video we'll be talking about variance and standard deviation. Variance means the squared deviations of variables from mean. Now recalling mean deviation, उसका फॉर्मूला क्या होता था 1/n summation I is equal to 1 to n xi minus x bar, but it's absolute value. ओके तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, ये सारी क्या है वेरिएबल्स की वैल्यू, ये क्या है मीन. दिस इज द डेविएशन ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम मीन और ये होगा उसका स्क्वायर. सो दिस डेफिनेशन अप्लाइज हियर. द स्क्वायर डेविएशंस ऑफ वेरिएबल्स फ्रॉम मीन, दिस इज कॉल्ड वेरिएंस और इसको डिनोट करते हैं हम सिग्मा स्क्वायर से. दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेरिएंस. एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन. सो अगर मैं वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ मेरे को क्या मिल जाएगी स्टैंडर्ड डेविएशन. सो टेकिंग स्क्वायर रूट वी गेट सिग्मा इज इक्वल टू अंडर द रूट 1/n summation I is equal to 1 to n xi minus x bar whole square. These are the two formulas, one to find variance, one to find standard deviation, but in case of ungrouped data. Now let's look at an example. Now in this example we have to find the value of mean, variance and standard deviation for the given data. ये ungrouped data है. So firstly हम क्या निकालेंगे mean. So mean, that is x bar is equal to sum of all observation. All observation are 6 plus 7 plus 12 plus 10 plus 13 plus 4 plus 8 plus 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 divided by 8, which is equal to 72 divided by 8, which is equal to 9. So mean की वैल्यू आ गई हमारे पास 9. अब निकालेंगे हम variance and standard deviation. For that we have to make a table. So xi, all the values of xi 6 7 10 12 13 4 8 12. सेकेंड विल बी xi माइनस, हमें क्या चाहिए वेरिएंस निकालने के लिए समेशन i इज इक्वल टू 1 टू n xi माइनस x बार होल स्क्वायर. इसकी वैल्यू चाहिए तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे xi माइनस x बार एंड हेयर xi माइनस x बार होल स्क्वायर. तो फर्स्टली x बार हमारे पास 9, xi क्या है पहला हमारे पास 6. सो 6 minus 9 gives us -3, 7 minus 9 gives us -2, 10 and 9 gives us 1, 12 and 9 gives us 3, 4, -5, -1 and 3. तो इसका स्क्वायर भी करेंगे हम xi माइनस x बार का स्क्वायर. वी गेट 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 1 9, 4 स्क्वायर 16, -5 स्क्वायर 25, -1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9. Adding all these we get 3 times 9 27 plus 25 plus 4 and 16 gives us 20, and 2 times 1 we get 74. So xi minus x bar की वैल्यू आ गई हमारे पास 74. So using the formula for variance we get sigma square is equal to 1/n summation I is equal to 1 to n xi minus x bar whole square, which is equal to total number of terms हमारे पास 8. So we get 1/8 into 74, which is equal to 9 times 8 gives us 72. So we have 9.25. Variance की वैल्यू आ गई हमारे पास 9.25. और we know standard deviation, that is sigma is equal to under the root variance. Variance की वैल्यू क्या है हमारे पास 9.25. So we have 9.25. Sigma is equal to 9.25, which is equal to 3.04, and hence the result. Now we'll talk about standard deviation and variance for group data. Group data दो टाइप के होते हैं, discrete and continuous. But firstly हमें क्या दिया होता है xi की वैल्यू दे रखी होती है, say x1, x2, x3 up to so on something like that. और हमें frequency दे रखी होती है f1, f2, f3 something like that. ओके तो इस केस में वेरिएंस का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, हम सबको पता है मीन कैसे निकालते हैं. वी स्टडीड लास्ट टाइम. मीन इन दिस केस इज समेशन fi xi over summation fi, which is equal to total number of terms, that is n. So variance becomes sigma square is equal to 1/n summation I is equal to 1 to n
fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्केयर। ओके, सिंपल। जैसे हम निकालते थे मीन डेविएशन लास्ट टाइम, वैसे निकालते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लेंगे। ओके, और उसी तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ वेरिएंस विच इज़ 1/n summation I is equal to 1 to n fi into xi minus x bar whole square. Now this formula remains same in case of discrete distribution and also for continuous frequency distribution. Okay, कोई इनमें डिफरेंस नहीं आएगा, बट in case of continuous distribution कई बार हम एक और फॉर्मूला यूज़ करते हैं to find standard deviation which is equal to 1/n under the root n into summation I is equal to 1 to n fi xi square minus summation I is equal to 1 to n fi xi whole square. ओके, आप कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। वेरिएंस का फॉर्मूला सेम रहेगा दोनों केसेस में। ओके, नाउ इन दिस एग्जांपल वी हैव टू फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दिस डाटा। दिस इज ग्रुप डाटा, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सेकंड जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, उसको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्साइज की वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज़ है। मीन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई ओवर समीशन एफ आई। तो हमें समीशन एफ आई एक्स आई चाहिए और समीशन एफ आई भी चाहिए, इन सबको ऐड करेंगे वी गेट 40 इट्स वैल्यू, एंड एफ आई एक्स आई निकालते हैं तो वी गेट 6 to 12, 10 into 4 we get 40, 14 into 7 we get 98, 18 into 12 we get 216, 24 into 8 we get 192, 28 into 4 we get 112, and 30 into 3 we get 90. So summation fi xi इन सबको जब हम ऐड करेंगे we get 760 इसकी वैल्यू। So we can find out mean की वैल्यू क्या जाएगी हमारे पास, 760 divided by summation fi which is 40, 0 cancel, 4 ones are 4, 6 we get 36, that is 9, 19 आएगी इसकी वैल्यू, x बार की वैल्यू। So we can find xi minus x bar, 6 minus 19 we get minus 13, 10 minus 19 we get minus 9, 14 minus 19 minus 5, 18 and 19 we get minus 1, 24 and 19 we get 5, 28 and 19 we get 9, and 30 and 19 we get 11। ये आ गई हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू। अब इसका स्क्वायर लेंगे वी गेट 13 स्क्वायर 169, 9 स्क्वायर 81, 5 स्क्वायर 25, 1 स्क्वायर 1, 25, 81 एंड 121। ये आ गई हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू। नाउ विल फाइंड एफ आई। हम क्या करेंगे, एफ आई की जितनी भी टर्म्स है उसको उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो विल गेट 2 into 169 gives us 338, second is 81 into 4 we get 324, 25 into 7 we get 175, 12 into 1 we get 12, 8 into 25 we get 200, 81 into 4 we get 324, and then 121 into 3 we get 363। ये आ गया हमारे पास एफ आई इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। अब हमें निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर is equal to 1/n summation I is equal to 1 to n fi into xi minus x bar whole square। हमें इस फैक्टर की वैल्यू निकालनी है जो कि हमारे पास यहाँ पे आएगी इन सबको ऐड करके। ओके, इन सबको ऐड करेंगे वी गेट 1, 7 एंड 36। ये आ गई इस फैक्टर की वैल्यू। यूजिंग इट वी गेट वेरिएंस इज इक्वल टू 1736 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विच इज 40। सो वी गेट 4 4s are 16, 1 carry, 4 3s are 12, 1 carry, 4 4 are 16 which is 43.4। ये आ गई हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू। सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। सो वी हैव स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू अंडर द रूट 43.4 विच इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब इसको आप ओरली भी निकाल सकते हो, जैसे 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 एंड 49 का स्क्वायर रूट होता है 7, तो इसकी वैल्यू 6 और 7 के बीच में आनी चाहिए। और नेक्स्ट मेथड इज़ शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड का हम यूज़ करेंगे कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए। इसका मैं मेथड एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट, जैसे जब भी हम कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सॉल्व करते थे मीन डेविएशन निकालने के लिए, तो हम एक टेबल बनाते थे। वैसे इसके लिए भी एक टेबल बनता है। तो टेबल में सबसे पहले क्या आता है, क्लास दैट इज इंटरवल, क्लास / इंटरवल, फिर उसके बाद हमें क्या दिया होता था, फ्रीक्वेंसी,
नेक्स्ट हम क्या निकालते थे, मिड पॉइंट ऑफ क्लास, उसको बोलते थे हम एक्साइज। से इट इज़ x1, x2, x3, x4 समथिंग लाइक दैट। अब शॉर्टकट मेथड में एक नई टर्म आती है दैट इज़ yi एंड इट इज़ इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h। अब ये a क्या चीज़ है, a इज कॉल्ड अज्यूम्ड मीन, और वो कहाँ से आता है, जितनी हमारे पास xi की टर्म्स हैं हम उसमें से एक टर्म उठा लेते हैं, उसको मान लेते हैं हम अज्यूम्ड मीन। वो टर्म कौन सी होती है, मोस्टली हम मिडल टर्म उठाते हैं, उसको अज्यूम्ड मीन मानते हैं। वहाँ से हमारे पास yi की वैल्यू आ गई, xi ये वाली टर्म कोई भी टर्म माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय h क्या होता है, हाइट ऑफ इंटरवल। इंटरवल हमें कुछ ऐसे दिया होता है 10 to 20, 20 to 30 समथिंग लाइक दैट, हमें इंटरवल दिया होगा। फिर हमारे पास yi आ गया, नेक्स्ट टेबल में हम क्या निकालते हैं, yi स्क्वायर देन fi स्क्वायर, ये सब टर्म निकाल गई। उसके हमने निकालना है वेरिएंस। सो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है शॉर्टकट मेथड में सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। h क्या है, हाइट ऑफ इंटरवल, एंड n स्क्वायर क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, दैट इज समीशन fi इंटू n टाइम समीशन i इज इक्वल टू 1 to n fi yi स्क्वायर, मतलब इन सब टर्म्स का सम माइनस समीशन i इज इक्वल टू 1 to n fi yi होल स्क्वायर, दैट इज इन सब टर्म्स का सम और उसका होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला इन शॉर्टकट मेथड। और स्टैंडर्ड डेविएशन तुमको पता ही क्या आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। ओके, now let's solve some examples. Now in this example we are given intervals and frequency and we'll use shortcut method to find variance and standard deviation. ये आएगी हमारे पास क्लास, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज है हमारे पास 3, 7, 12, 15, 8, 3 and 2. Okay, next point is xi. xi क्या होता है, क्लास का मिड पॉइंट। सो मिड पॉइंट्स आर here 35, 45, 50 and 60, 55, 65, 75, 85 and 95. नेक्स्ट पॉइंट इज yi. yi क्या होता है, xi माइनस अज्यूम्ड मीन। अब हमें यहाँ से अज्यूम्ड मीन निकालना पड़ेगा। मैंने क्या बोलता, अज्यूम्ड मीन हम मानते हैं जो मिडल टर्म होती है मोस्टली, तो मिडल टर्म यहाँ पे कौन सी है, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3, मिडल टर्म आ गई हमारे पास 65। सो अज्यूम्ड मीन हम ले रहे हैं 65। सो yi इन फर्स्ट केस बिकम्स 35 माइनस 65 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इंटरवल। हाइट ऑफ इंटरवल क्या है हमारे पास 10, विच इज इक्वल टू, अब 35 माइनस 65 कितना होगा, -30 डिवाइडेड बाय 10 वी गेट -3। वैसे ही 45 माइनस 65 डिवाइडेड बाय 10 गिव्स अस -2, -1, दिस बिकम्स 0, दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 2, दिस बिकम्स 3। ये आ गई हमारे पास yi की सारी वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट इज yi स्क्वायर, -3 स्क्वायर 9, -2 स्क्वायर 4, -1 स्क्वायर 1, 0, 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9। और नेक्स्ट टेबल इज fi yi। तो fi हमारे पास 3, yi की वैल्यू यहाँ पे 9, सो वी गेट yi की वैल्यू यहाँ पे -3, सो वी गेट -9, 7 इंटू -2 -14, 12 इंटू -1 वी गेट -12, 15 इंटू 0 वी गेट 0, 8 इंटू 1 वी गेट 8, 3 2 6 एंड 3 2 6, 6 एंड 6। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन सबको ऐड करके -35 और इन सबको ऐड करके 20, सो वी गेट -15 एज fi yi। समीशन fi yi की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -15। नेक्स्ट पॉइंट इज fi yi स्क्वायर। तो fi हमारे पास 3, y स्क्वायर है 9, 9 3 27, 7 इंटू 4 28, 12 इंटू 1 12, 15 इंटू 0 0, 8 इंटू 1 8, 4 3 12 एंड देन 9 2 18। इन सबको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 105। हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता था, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू n टाइम्स समेशन i इज इक्वल टू 1 to n fi yi स्क्वायर माइनस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n fi yi होल स्क्वायर। ये आता है हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला। हमारे पास fi yi स्क्वायर की वैल्यू भी है समेशन, एंड समेशन fi yi की वैल्यू भी है, और हमारे पास h स्क्वायर की वैल्यू भी है। h स्क्वायर क्या हुआ, हाइट, हाइट क्या हमारे पास 10, h इज इक्वल टू 10, और n कहाँ से आएगा हमारे पास, समेशन fi से। इन सबको ऐड करेंगे सो विल गेट 50। सो n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 50। यूजिंग ऑल दिस वैल्यूज हियर वी गेट
h की वैल्यू है 10 स्क्वायर अपॉन 50 स्क्वायर इंटू n क्या हमारे पास 50 इंटू समीशन एफ वाई आई स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 105 माइनस समेशन एफ वाई आई होल स्क्वायर। तो हमारे पास एफ वाई आई की वैल्यू क्या थी -15, इसका होल स्क्वायर लिया हमारे पास क्या आ जाएगा 225 और सॉल्विंग दिस वी गेट इसका स्क्वायर खोला इसका स्क्वायर खेला वी गेट 1/25 इंटू 50 105 माइनस 225 which is equal to 1/25 into 5 multiplied by 125 we get 525 और एक जीरो भी था तो 5250 minus 225/25 subtracting this and dividing by 25 we get 201। सो वेरिएंस की वैल्यू आ गई हमारे पास 201 और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर द रूट वेरिएंस। सो वी हैव variance that is sigma square is equal to 201, so standard deviation becomes under the root 201 which is equal to 14.18 and hence the result। Now in this example we'll again use the shortcut method। हमारे पास क्लास दे रखी है हमारे पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है सिंपल मेथड है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 8 15 16 एंड 6 एक्स आई की वैल्यू क्या आएगी क्लास का मिड पॉइंट इसका मिड पॉइंट क्या होगा 5 देन वी हैव 15 25 35 एंड 45। हमें एंड में समीशन एफ वाई भी चाहिए होता है तो एडिंग ऑल दिस टर्म वी गेट 15 5 20 20 एंड 16 वी गेट 36 42 एंड 50। ये आ गई हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n इज इक्वल टू 50। नेक्स्ट पॉइंट इज वाई आई के लिए हमें क्या चाहिए अज्यूम्ड मीन हम कहाँ से करेंगे यहाँ से मिडिल टर्म कौन सी है 25 सो टेकिंग इट टू बी द अज्यूम्ड मीन वी गेट वाई आई फर्स्ट टर्म y1 इज इक्वल टू एक्स आई क्या है हमारे पास 5 माइनस अज्यूम्ड मीन इज 25 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ इंटरवल विच इज 10 सो 25 minus 5 minus 25 sorry gives us -20 divided by 10 which is equal to -2। फर्स्ट टर्म आएगी हमारे पास आ जाएगी -2 फिर सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास -1 थर्ड टर्म 0 फोर्थ टर्म 1 एंड फिफ्थ टर्म 2 so y square becomes -2 square 4 1 square 1 0 1 and 4। नेक्स्ट टर्म इज एफ आई इंटू वाई आई एफ आई क्या हमारे पास 5 वाई आई हमारे पास -2 सो 5 इंटू -2 become -10 8 इंटू -1 we get -8 15 इंटू 0 0 16 इंटू 1 16 and then 6 into 2 we get 12। नेक्स्ट इज एफ आई वाई आई स्केयर एफ आई हमारे पास 5 वाई आई स्केयर हमारे पास 4 5 4 ज़ा 20 8 1 ज़ा 8 15 into 0 0 16 into 1 16 and then 6 into 4 we get 24। ये आ गई हमारे पास सारी वैल्यूज़। अब हमें चाहिए समीशन एफ आई वाई आई समीशन एफ आई वाई आई क्या होगा हमारे पास ये आ गया -18 ये आ गया हमारे पास +28 यहाँ पे आ गई हमारे पास वैल्यू 10 और एफ आई वाई आई स्केयर बिकम्स 20 and 24 we get 44 plus 16 we get 60 and then 60 plus 8 68। तो हमारे पास एफ आई वाई आई स्केयर का समीशन आ गया 68। now using the formula for variance which is sigma square is equal to h square upon n square into n times summation I is equal to 1 to n f I y I square minus summation I is equal to 1 to n f I y I whole square। So using these values we have height of the interval is 10 square divided by total number of terms is 50 square into n times that is 50 times f y y I square जिसकी वैल्यू हमारे पास 10 minus summation f y y I whole square that is 68 whole square। So we get 1/25 into 500 minus 68 whole square which is equal to इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 132। ये आएगी हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू। सो वेरिएंस इज 132 स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर द रूट वेरिएंस विच इज 132 under the root which is equal to 11.48 and hence the solution। Now next topic is coefficient of variation। ओके सपोज हमारे पास टोटल सीरीज है हमारे पास बहुत सारी हमारे पास वेरिएशन दे रखी थी
उसका हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन है सिग्मा। ओके, अगर मैं सिग्मा को उस सीरीज़ के मीन से डिवाइड करता हूँ एंड मल्टीप्लाइड बाय 100, उसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिनोटेड बाय CV। सिंपल मेथड, सिंपल सॉल्यूशन। लेकिन अगर मेरे पास दो सीरीज़ दे रखी हैं, CV फॉर सीरीज़ 1 से S1 डिनोट सीरीज़ 1 इस केस में हाइपोथेटिकली, तो सीरीज़ 1 के लिए CV इज़ सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय x बार इंटू 100, और सीरीज़ 2 के लिए CV इज़ इक्वल टू सिग्मा 2 डिवाइड बाय x बार 2 इंटू 100, और इसकी कंडीशन होती है कि x बार कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, नाउ से इफ CV1 इज़ फॉर सीरीज़ 1 एंड CV2 इज़ फॉर सीरीज़ 2, और इन दोनों में CV1 CV2 से बड़ी है सपोज, तो जिस सीरीज़ का CV बड़ा होता है उस CV को बोलते हैं हम इट इज़ मच मोर वेरिएबल, और जिसका CV छोटा होता है उसको बोलते हैं इट इज़ मच मोर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। दिस इज़ हाउ वी यूज़ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस। तो सपोज x1 बार x2 बार के इक्वल है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे सीरीज़ को? वील यूज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बोथ द सीरीज़। जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन बड़ा होगा दूसरे से, विच इज़ मच मोर वेरिएबल, जिसका छोटा होगा मच मोर कंसिस्टेंट। लेट्स लुक एट एन एग्जांपल। सो इन दिस एग्जांपल एन एनालिसिस of monthly wages of worker from firm A and B is given as below. Firm A की जो wages हैं, number of wages for firm A is 586, firm B 648, mean for firm A is 5253 and for firm B 5253. Same mean है दोनों का. Third is variance. Variance for firm A is 1 and for firm B is 121. Firm A के लिए 100 sorry. तो हमें क्या निकालना है? We have to find out which firm pays larger amount and second point which firm shows great variability. Variability means कि किसका CV दूसरे से बड़ा होगा। अब क्योंकि दोनों का मीन इक्वल है तो इस केस में हम क्या शो करेंगे कि किसका वेरिएंस एक दूसरे से बड़ा है। सो इन दिस केस वी हैव फर्स्ट पॉइंट विच पेज लार्जर अमाउंट। अब मीन फॉर पहले फर्म ए के लिए निकाल रहे हैं। मीन फॉर फर्म ए इज 5253 and number of wages for firm A is 586. So total amount कितना पे करेगा firm A? Total amount paid is equal to 5253 into 586. Okay. For firm B we have mean 5253 same mean है दोनों का and wages is equal to 648. So total amount paid is equal to 5253 into 648. Clearly 5253 into 648 बड़ा होगा 5253 into 586 से. So firm A pays more amount than firm B. First point clear. Second point में हमें दिखाना था कि कौन सा फर्म ग्रेट वेरिएबिलिटी शो करता है. तो ग्रेट वेरिएबिलिटी हम कैसे निकालते हैं कि किसका CV दूसरे से बड़ा होगा। बड़े CV वाले के पास ज़्यादा वेरिएबिलिटी होगी, बट दोनों का मीन क्या है इस बार में? सेम 5253 दोनों के पास है, तो हम क्या देखेंगे? वेरिएंस। अब वेरिएंस फॉर फर्म B इज़ ग्रेटर, दैट इज़ 121 इज़ ग्रेटर देन 100, सो फर्म B हैज़ मच मोर अमाउंट टू पे देन फर्म A. So guys, this was it for today. If you have any problems regarding this chapter of statistics, you can leave them down in the comment section. Next time we'll begin with the chapter of probability. Till then, keep practicing.